Hello student, welcome to my channel Math Guru 9. Today we have to learn about the based on the fraction, which is the part of linear equation two variable, and based on the word problem. है ना, many students have faces the many problem related to the word problem, and step by step learn how to make the linear equation by reading carefully statement of questions, है ना, and make the simple linear equation. Okay, now in this video you have to learn based on the fraction of linear equations, है ना. Then you can carefully read question number 21. A fraction become 4 by 5 if 1 is added to the numerator and denominator, है ना. तो fraction, what is the fraction? Fraction means anything, fraction like that. If you write here 1 by 2 minus 2 by 3 minus 8 by 5 and 6 by 8, or 0.5 0.006, है ना, and minus 0.8 minus 0.9, this is the called fraction. Okay, and if you make the general term of fraction, it's mean let the numerator equal to x and denominator equal to y, ठीक है ना. then fractions is equal to x upon y. This is the called general term of fraction. Are you get this point, है ना. This is the fraction may be positive, may be negative, may be pointed form, may be negative pointed form, may be positive form, anything like that, है ना. If you can make the general term like that, then you have simply write here x upon y. This is the called fraction, ठीक है ना. Where fraction is a type of rational number, but in the same things rational number where what is the rational number? P upon q and q not equal to 0, है ना. Similarly a fraction is also part of the rational number, है ना. You can say that the fraction is a type of rational number, etc. okay, etc. So the question number 21 is saying that 4 upon 5, a fraction become 4 upon 5. कोई फ्रैक्शन बेटा है वो 4 अपॉन 5 हो जाता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन. कोई फ्रैक्शन 4 अपॉन 5 हो जाता है कब? फ्रैक्शन हमने क्या लेट किया है, व्हाट इज द फ्रैक्शन? वी हैव टू लेट x अपॉन वाई. कब होता है? कब? इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो ये 1 ऐड जब कर लेंगे ऐसे, दिस विल मेक 4 बाई 5. समझ में आ गया. ये हमारा फ्रैक्शन कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम 4 अपॉन 5 तक कब होता है? व्हेन इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सिंपली वी हैव टू ऐड 1 न्यूमरेटर एंड 1 डिनोमिनेटर, है ना. देन नाउ द सेकंड स्टेप, यू कैन द क्रॉस मल्टीप्लाई टू ईच अदर. देन इट विल मेक 5x plus 5 is equal to 4y plus 4, and transfer the 4y in the left hand side. So make 5x minus 4y and equal to 5 go to the right hand side and it will minus, then the minus 1, 5x and minus 4y is equal to minus 1. This is the equation number first. After that you can read the condition number second very carefully. What is the condition second? However, if 5, what is the 5? From both, अच्छा 5 let add to both numerator and denominator, then fraction becomes 1 by 2, है ना. तो अगर 5 ऐड करें
दो चीज़ हो सकती है, या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ दिख नहीं रहा है ऐड है कि सब्ट्रैक्ट है बेटा, तो आप लोग मान कर चलेंगे ऐड है। अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो दिस इज द फ्रैक्शन है ना, हम ऐड कर लेते हैं x प्लस वाई both side, it will make the 1/2. Similarly you can cross multiply to each other, then it will make 2x plus 10 is equal to y plus 5, and 10 go to the right hand side will make the negative 10, and y come to left hand side will make the negative equal to 5 minus 10. तो 2x minus y is equal to minus का 5. This is the equation number second. And solve equation number first and second. You can check here the coefficient of y is 4y, and the coefficient of y in the second equation is only y, and you have to multiply by 4 and change it. तो 4 to the 8x minus 4y is equal to minus का 20. And the question number first is 5x and minus 4y is equal to minus का 1. Now you can subtract it, then it will be minus plus plus, then this will terminate it. 3x is equal to 20. Twenty this will minus I think it is the subtract, because there is one thing is here mistake. Let this will the negative, this will negative. Okay, then subtract it. तो x, what is the condition? ऐसा बेटा दिख नहीं रहा है कि किसी न्यूमरेटर से, बहुत अच्छा है, हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 5 माइनस x माइनस 5 और अपॉन y माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2, and multiply to cross each other. 2x minus 10 is equal to y minus 5, and 2x minus y is equal to minus 5 plus का 10, and 2x minus y is equal to 5. This is the equation number second, and multiply it by 4, and it will make 4 to the 8x minus 4y is equal to 20, and the first equation 5x minus 4y is equal to minus का 1, and subtract it, this will terminate it, and 3x is equal to 21, and x is equal to 21 by 3. This will cancel out by 7 times, and put the value of 2x minus y is equal to 5, equation number first, and multiply here 14 minus y is equal to 5, and change the position of y. तो 14 minus 5 is equal to y, and the value of y is equal to 9. Okay, and then the fraction equal to, then fraction equal to, fractions is equal to x upon y, and the value of x equal to 7, and it will make 7 by 9, and you have to check the answer. Question number 21 7 by 9. ओके, तो थोड़ा सा वहाँ पर कन्फ्यूजन आ रहा था कि ऐड एक सब्ट्रैक्ट है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई. ठीक है ना. चलो, ऐसे सिंपली यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22. What is the 22? A fraction in such way, let fraction equal to x upon y. Directly you can suppose the fraction equal to x upon y. Okay, such that if numerator is multiplied by 3,
then according to the first condition, तो first condition is saying that if multiply by numerator by 3, कह रहा है if numerator is multiplied by 3 तो 3x and denominator is reduced by 3 तो y माइनस 3, ठीक है 3, then it will make 3x minus y is equal to minus का 3. This is the equation number first, and after that according to the second condition is saying that what if numerator is increased by 8, numerator x plus 8 increased by 3 and denominator is double, then denominator is double, तो denominator हो गया भाई इसका 2y, then we have get 2 by 5 and cross multiply to each other, तो 5x plus का 40 is equal to 4y and 40 go to the right hand side and we will make minus 40 is equal to minus का 40. This is the equation number second, and question number first and second solve by using the elimination method. The question number first is 3x minus y is equal to minus का 3, you have to multiply by 4 and will make 4 3 is 12x minus 4y equal to minus का 12 and 5x minus 4y is equal to minus का 40 and subtract it because the coefficient of y is the same but sign is also same. Then if the sign is same, then you have to subtract it, minus plus this will terminate it, and 12 minus 5 is 7x is equal to 10 minus 2 8 and 3 minus 1 2 and x is equal to 4, ठीक है. And now we'll put the equation of first 3x minus y is equal to minus का 3 and put the value of here 4 3 is 12 minus y is equal to minus का 3 and change the position, so 12 plus 3 is equal to y and 15 is equal to y. The value of y is equal to 15, so the fraction equal to x upon y and the value of x is 4 upon 15. This is the answer, and you have to check answer question number 22. This is the answer. Okay. 12.25 how 12.25. A fraction such that if numerator is multiplied by 3 and denominator reduced by 3 तो we get, बेटा इधर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ है उसको पता नहीं, पढ़ लेना. अगर मान लो यहाँ पर गेट लिखा होगा गेट 1/2 तो इसका प्रोसीजर चेंज हो जाएगा. तब प्रोसीजर चेंज होगा तब क्या हो जाएगा भाई, तब यहाँ पर जो है इस तरीके से नहीं आएगा, है ना. तब इसको चेंज करना पड़ेगा ऐसे 3x अपॉन y माइनस 3 अगर करें गेट 1/2 तो ऐसे इसको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना. अब यहाँ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा फ़ोटो में दिक्कत आ रही है, अगर आ रहा होगा तो ऐसे चेंज कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है. अभी मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पढ़ा है जिस तरीके से समझा है वहाँ क्या लिखा हो समझ नहीं आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ रहा है. क्लियर है. चलो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया. अब अपन लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर when both the numerator and denominator are decreased by 6 then denominator becomes the 12 times the numerator. अच्छा देखो
लेट मान लेते हैं फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, तो ये डिनोमिनेटर है किससे भाई, 4 मोर देन ट्वाइस। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज है 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर 2x हो गया, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बना लें इसको, देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4, दिस इज इक्वल नंबर फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड, व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 6 देन डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम। देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय, तो ये रहा न्यूमरेटर एंड ये रहा डिनोमिनेटर, सॉरी y माइनस 6, ठीक है ना, ठीक है। देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, है ना, किसके, न्यूमरेटर के, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, तो ये हो गया 12x माइनस का 72 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। तो इसको उधर भेजो, तो ये हो गया 12x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 72। तो कितना हो जाएगा भाई, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 56 हो गया, सॉरी 66 हो गया, ठीक है ना। इधर 12x माइनस का वाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2x सॉरी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज, तो दिस विल टर्मिनेटेड एंड 10x इक्वल टू 70 and the value of x equal to 7. Now the value of x equal to 7, put at the equation number first or second, 2x minus y equal to minus का 4 and this will 40 minus y is equal to minus का 4, है ना। तो 4 इधर आ जाएगा बेटा, तो 18 is equal to y, y की वैल्यू कितनी आएगी 18। सो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई बताओ, 7/18, ठीक है ना, 7/18 आंसर आ गया, ठीक। तो ये भी लग गया। ऐसे भाई 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ो, क्या करें, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 2, इफ न्यूमरेटर डिक्रीज बाय 2 एंड द denominator is increased by 1, then the denominator is 8 times the numerator। सेम क्वेश्चन है, 24 वाला भी ऐसे लगा सकते हो। 25 क्या कहता है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3, ये भी सेम क्वेश्चन लगा सकते हो। अब देखो ये लास्ट वाला क्या है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, sum of numerator and denominator of a fraction is 3 less than the twice of denominator, है ना। if the numerator and denominator are increased by 1 then it becomes the 1/2 of the denominator। तो बहुत आसान है यार, देखो 26 क्या कह रहा है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन इक्वल टू हम मान लेते हैं एक्स अपॉन वाई, क्या मान लेते हैं, एक्स अपॉन वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेइंग दैट सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो एक्स प्लस वाई, है ना, कह रहा है कि फ्रैक्शन इज 3 लेस देन 3 कम है ट्वाइस द डिनोमिनेटर, तो 2y माइनस 3। क्या कह रहा है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन, 3 कम है किससे, उसके दो, जो डिनोमिनेटर के 2 गुने से 3 कम है ना, तो ऐसा आ गया 3 लेस देन ट्वाइस द, चलो इसको इधर ले आओगे भाई, तो ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू आ गया भाई माइनस का 3, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो ऐसे भाई ये तो हो गया, इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इज सेइंग दैट, व्हाट इज द कंडीशन सेकंड,
डिक्रीज बाई 1, तो x माइनस 1 और y माइनस 1, द न्यूमरेटर बिकम द हाफ, न्यूमरेटर बिकम द हाफ द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बिकम्स आधा हो जाता है किसका, हाफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हाफ ये हो गया है ना। क्या कहता है भाई, ध्यान से देखो, डिक्रीज हो गया तो न्यूमरेटर बिकम्स हाफ, हाफ द डिनोमिनेटर। एक मिनट, इधर 1/2, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 2y माइनस 2। चलो, तो इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 1। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। सब ट्राई कर लेते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। इधर कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ा गई थोड़ा सा, देखो इधर 1/2 इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है x माइनस 1, जब जैसे क्या करता है भाई, डिक्रीज बाई 1 तो न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, ये हाफ हो गया, मतलब ये इधर हो गया 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है। तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो क्या बेटा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और पहली वाली इक्वेशन है वो x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3। सब ट्राई कर लेते हैं, साइन चेंज आएगी, हाँ, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। x इक्वल टू आ गया बेटा 4, अब x इक्वल टू 4 आ गया तो किसी इक्वेशन रख लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। अब क्या जाएगा भाई, तो हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो फ्रैक्शन कितना आ गया, फ्रैक्शन इक्वल टू कितना आ गया भाई 4/7, 4/7 आंसर आ गया, ठीक है। चेक करते हैं 26 वाला आंसर, देखो सही है कि गलत है। देखो 3/7 आ गया कि नहीं आ गया, ये देखो 7/28, ठीक है, 7/28 समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। ऐसे आंसर निकालते हैं, ठीक है, ओके। ये देखो हमारा आंसर आया कि नहीं आया है ना, 23 वाला, ठीक। ये देखो 4/7, 26 वाला था ना, 26 वाला 4/7, ये देखो 4/7 आया कि नहीं आया हमारा आंसर, ठीक है ना, आंसर आ गया, क्लियर है। चलो, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि हम सारे बच्चों को और हेल्प कर सकें, ठीक है ना। तो आज के